غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اووس ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل الغازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ بھائی عالیہ صاحب کو شفا خانے لے کر جائیں فوراً۔ جی بھائی۔ اسحاق تم زخمیوں کو دیکھو فوراً، جلدی کرو، جلدی جلدی جلدی۔ سنبھل کر۔ جال بچھایا تھا اس نے۔ ابو منصور اگر وہاں نہ ہوتے تو ہم سب مارے جاتے۔ سلطان اتنی دور سے یہاں آ کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ کسی پر بھی میرا راز ظاہر نہیں ہونا چاہیے ارطغرل صاحب۔ ان کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے، کسی بھی خبر کے لیے تیار رہیے۔ ابو منصور نامی آدمی کو ڈھونڈنا ہے تمہیں، اور معلوم کرنا ہے کہ ابو منصور سلطان علاء الدین تو نہیں۔ وقت آنے پر میرے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بمسی۔ لیکن سب سے پہلے اس ظالم اور ملعون بھیڑیے کا سر اورال کی طرح اتارنا ہوگا ہمیں۔ جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں اس کا عکس آپ کی آنکھوں سے چھلک رہا ہے ارطغرل صاحب۔ وسیلیوس نے اورال کا فائدہ اٹھا کر چاودار قبیلے کے لوگوں کو مار ڈالا۔ اس نے بہت سے ترک قبائل کے بہادروں کو دھوکہ دیا ہے، اور اب عالیار ان کا انتقام لینا ضروری ہے سلطان۔ ویسیلیوس کا سر قلم کرنا اور کارا جیسار کا قلعہ فتح کرنا میرے لشکر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں قلعہ فتح کرتا ہوں تو بادشاہ اور صلیبی بھی اس معاملے پر متحرک ہو جائیں گے۔ تاجر ابو منصور کی حیثیت سے میں لوگوں سے گفتگو کر کے یہ بات اچھی طرح جان چکا ہوں کہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلموں کے دل بھی فتح کر لیے ہیں آپ نے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کی دی گئی ذمہ داری کو اپنا شعار بنایا ہے سلطان۔ سلطنت کی خاطر آپ کے احکامات کی پاسداری کی میں نے۔ سلطنت کا مغربی حصہ محفوظ رکھنا کتنا اہم ہے آپ کے لیے میں جانتا ہوں سلطان۔ جب آپ محاذ پر ہوں گے تو آپ کے احکامات کی روشنی میں ہم اس خطے کی سالمیت کو یقینی بنائیں گے۔ بات کی وضاحت کیجیے ارطغرل صاحب۔ کارا جیسار کے قلعے کو فتح کرنے اور وسیلیوس کے سر کو قلم کر کے بادشاہ کو بھیجنے پر ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مجھ پر ویسے ہی اعتماد رکھیں جیسے ترک قبائل کے اتحاد پر اعتماد رکھتے ہیں۔ بغیر لشکر کے کارا جیسار کا قلعہ فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ محض فتح کی بات نہیں ہے سلطان، بلکہ بیک وقت فتح کے بعد وہاں محافظ فراہم کرنے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ نیکیا کی بادشاہ کی کمزوریوں سے واقف ہوں میں، اور قسطنطنیہ کے لاطینیوں کی لالچ سے بھی۔ کیا آپ اپنے حامی ترک قبائل کی مدد سے محافظ مہیا کریں گے؟ ترک قبائل کے بہترین سپاہیوں کو ہم ایک عرصے سے بطور لشکر تیار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بہترین سپاہی ان کی تربیت کے لیے بھیجے تھے۔ تربیت کسی ایک دن بھی موقوف نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے ہمیں ان علاقوں سے بے دخل کرنے کے لیے بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سب کو ختم کر کے آپ قلعے میں داخل ہو گئے تھے، اپنے بھائی دندار کو ویسیلیوس کے چنگل سے آزاد کروا لیا تھا۔ اب اس نے ایک بار پھر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ان کا ارادہ واضح ہے سلطان، لیکن مجھے پھر بھی کارا جیسار کے قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔
दुआ ना हमारे बच्चे की विलादत किसी भी वक्त मुतवक्के है जब वो अपने खूबसूरत चेहरे के साथ इस दुनिया में आएगा तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अंदर आ सकती हूँ बेटी? आ जाइए हैमा खानम। आइए। बैठ जाओ बेटी, आराम करो। शाबाश। सोचा सोने से पहले मिल लो तुमसे। कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हैमा खानम, शुक्रिया आपका। शुक्र है हलीमा सुल्तान के यहाँ विलादत हो चुकी है बेटे की। बहुत खुशी हुई है मुझे। शुक्र है रब का। अल्लाह ने चाहा तो तुम भी बहुत जल्द माँ बन जाओगी मेरी बच्ची। दुआन की निशानी होगा वो। अर्तुरुल के बच्चों के साथ पूरे खेमे में खेलता फिरेगा, घोड़सवारी करेगा, तलवार सजाएगा अपनी कमर पर। इंशाअल्लाह हैमा खानम। अपने बाबा की तरह बहादुर सिपाही बनेगा, अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलेगा इंशाअल्लाह। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जल्द दुनिया में आ जाए। दुआन की इस अमानत को मैं आपके और अर्तुरुल भाई के सुपुर्द करना चाहती हूँ हैमा खानम। तुम्हारा मतलब क्या है बानो जीजक? अपनी औलाद के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए हम इस खत्ते में आए थे हैमा खानम। हम में से बहुत से शहीद हो गए। दुआन भी अर्तुरुल भाई के मकसद की तकमील की खातिर शहीद हुआ। आलियार भाई भी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस मकसद की तकमील के लिए जो भी इस राह पे चल रहा है उसे हर लम्हा शहादत के लिए तैयार रहना है। और इस मकसद के लिए तलवार उठाने वाले एक मर्द और खातून में कोई फर्क नहीं। बेटी अब तो मैं हैमा खानम, अब मेरा बेटा आपकी, मेरी जान अल्लाह की और मेरी तलवार अर्तुरुल भाई की अमानत है। कबीले की माओ की आंखें अश्क बार ना हो, इसलिए जब तक कारा जैसार का किला तबाह नहीं हो जाता उस वक्त तक सुकून का सांस हराम है मेरे लिए। देखो बेटी, तुम्हारे पास दुआन सिपाही की अमानत है। दुआन मेरा बेटा था और तुम मेरी बेटी हो। जैसे हलीमा है मेरे लिए वैसे ही तुम हो। अर्तुरुल आज नहीं तो कल वेसेलियुस से इंतकाम जरूर ले लेगा बेटी, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखोगी बेटी। वालिदा, भाई कितना अरसा कबीले से दूर रहे, लेकिन कबीले लौटने के बाद एक दिन सुकून का नहीं मिला आपको। बाबा के बाद आपने मेरा ख्याल रखा। अगर आप भी चले गए तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। मुझे मत छोड़िएगा भाई। आर्टू भाई, हाथ हिलाया इन्होंने।
या शाफी या अल्लाह, या शाफी या अल्लाह। आलियर भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी बहन। जी भाई। अर्तुरुल भाई से बात करनी है। इसहाक अर्तुरुल भाई को खबर करो जाकर। जी अर्तु भाई। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेसिलियस काफी अरसे से किले की फसीलें मजबूत कर रहा है, यानी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो गुस्सा उसे मुझ पर है, उसकी वजह से किले तक महदूद कर लिया है उसने अपने आप को। नतीजतन अपनी ही रियाया की नजरों में अब अपना एतबार खो चुका है। वो सब्र और अक्ल दानिश से अपने गुस्से और अहमकाना हरकतों में जकड़े वेसिलियस का सर कलम करने की ताकत रखता हूं मैं, और सल्तनत के अजीम परचम को मैं कारा जैसार के किले की फसीलों पर लहरा दूंगा। अपनी फौज के हमरा जंग पर जाते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सुल्तान। हाजिर हो सकते हैं? आ जाइए। अर्तुरुल सरदार, इजाजत है आपकी? आइए वालिदा। अबू मंसूर से हम कहना चाहते हैं कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शर्मिंदा ना कीजिए, जो मेरे बस में था वो किया। आपने हमारे सिपाहियों की जान बचाई, अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। साहबजादों के नाम क्या हैं? बड़े बेटे का नाम गुंदूज है, और इस बच्चे का नाम नहीं रखा अभी तक। मेरे बाबा सुलेमान शाह इसका नाम सावजी रखने के ख्वाहिशमंद थे। मैं चाहता हूं कि आप इसका नाम तजवीज करें। मेरे लिए शर्फ होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम सावजी है, तुम्हारा नाम सावजी है, तुम्हारा नाम सावजी है। ये नाम तुम्हारे दादा सुलेमान शाह ने दिया है। अल्लाह उम्र दराज करे। आमीन आमीन आमीन। आसमान पर फरिश्तों को और जमीन पर बसने वालों को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा नाम सावजी है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ इसहाक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आलियार साहब को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس دنیا میں غریب مسافر کی طرح رہا میں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے مقصد کے حصول کے لیے شہید ہو کر قبر میں دفن ہو جاؤں گا اپنی. بھائی بھائی ارطغرل صاحب علیار صاحب ارطغرل بھائی قریب آئیے. اس فانی دنیا میں آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کہنا ہے آپ سے؟ خود پر بوجھ نہ ڈالے علیار صاحب. زندگی کا یہ بوجھ اتارنے کا وقت آ گیا ہے ارطغرل بھائی. میری بہن اور میرا قبیلہ آپ کے پاس امانت ہے میرے بھائی. قلعہ فتح کرنا اور شہیدوں کے خون کا انتقام لینا آپ کی ذمہ داری ہے. ارطغرل بھائی تو میں یاد رکھیے گا. علیار صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ جنگ کا موقع ملا. منزل مقصود کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے جاؤں گا. آپ کی امانت اور آپ کی وصیت میرے دل پہ نقش ہے. مگر آپ ہمت نہ ہاریے. منزل کے حصول کی راہ میں مجھے تنہا نہ چھوڑیں. آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی بھائی آرتک بھائی کچھ کیجیے بھائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
की खातिर, वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीदों को सुपुर्द करते हैं तेरे। रहमत फरमा इन पर और हमें सब्र जमील अता फरमा मेरे अल्लाह। हमारे जाबाजों को शिफा याब फरमा मेरे मालिक। हमारे दीन, हमारी सल्तनत और हमारी मिल्लत के लोगों को हर तरह के दाखिली और खारजी दुश्मनों से अपनी पनाह में रख और तेरे नबी की उम्मत के दिफा के लिए, इंसाफ और तेरी हक्कानियत को कायम करने के लिए इन्हें ज़फ़रयाब कर। अंबिया, औलिया, सालिहीन और शोहदा की हुर्मत के सदक़े दुआ कबूल फरमा। शोहदा को जन्नत और अपने जमाल से मुशर्रफ फरमा। तुझी पर हमारा ईमान है, हर शय पर तेरी ही कुदरत है। आमीन आमीन। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल भाई आपके मुंतजिर हैं। चलते हैं अब्दुर्रहमान, अपने शहीद का आखिरी फर्ज भी अदा कर दें। वालिदा, मैं भी साथ चलूंगी। बेटी, असलिहान खातून को मेरी जरूरत है। भाई, आप मेरा सब कुछ थे, हर शय से बढ़कर थे मेरे लिए। मेरा प्यारा भाई चला गया। मेरे भाई का इंतकाम जरूर लीजिएगा। जाफदार का हर सिपाही आपकी कमान में होगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं कसम खाता हूं कि वेसिलियस को उसके अपने खून में नहला दूंगा। कबीले को अब आपने संभालना है असलिहान खातून। अपनी मतानत को कायम रखिए। आपको मजबूत रहना होगा ताकि लोग और सिपाही भी मजबूत रहें।
आलियार साहब की वसीयत के मुताबिक दोनों कबाइल के मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। भाई आलियार साहब, हक की बारगाह में सुरखरू हो गए सुल्तान। अल्लाह शहादत कबूल करे। आमीन। सल्तनत की बका की खातिर अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी आप लोगों ने। बहुत से सिपाही शहीद हो गए और आलियार साहब भी उन्हीं शहीद सिपाहियों की सफ में शामिल हो गए। उनके खून का हिसाब लेना अब मुझ पे वाजिब हो चुका है अर्तुगरुल साहब। मैं देख रहा हूं कि वेसिलियुस ही फितने की जड़ है और बादशाह भी उसका साथ दे रहा है। इस फितने से निमटने का वक्त आ चुका है। इस मकसद के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं सुल्तान। आपकी बातों ने और आपके इक़दामात ने जो आपने इस खित्ते की खुशहाली के लिए अंजाम दिए हैं, मुझे कायल कर लिया है अर्तुगरुल साहब। तुर्क कबाइल को आप बंद मुट्ठी की तरह मुत्तहिद कर सकते हैं और अब ये बंद मुट्ठी कारा जैसार के किले पर वार करेगी। कोनिया रवानगी से कबल मैं तुर्क सरदारान से मुलाकात करके उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि मैंने आपको सरदार आला मुकर्रर कर दिया है। ताकि आप बगैर किसी मुदाखलत के शहीदों का इंतकाम ले सकें। कारा जैसार का किला फतह होने के बाद मैं ये पूरा इलाका आपके सुपुर्द कर दूंगा। काई का ये अजीम मुल्क बहुत से दीगर तुर्क कबाइल के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए अदलो इंसाफ का हामिल होगा। अल्लाह आपको ये जिम्मेदारी पूरी करने की ताकत दे। आमीन। हमारा रहनुमा कुरान, हमारे सुल्तान इज्जत माब अलाउद्दीन कैकुबात खान, हमारे जद ओस खान है। अल्लाह महफूज रखे हम लोगों को। हमारी जिंदगियां सल्तनत की बका के लिए हाजिर है। अल्लाह हमारे शहीदों के वसीले से हमको नाकामी से महफूज रखे। अर्तुगरुल, आलियार, असलिहान, इन सबको जहन्नुम वासिल कर दे खुदावंद। मुझे इस किले में मौजूद उस मलून की मौत दिखा दे खुदावंद। वेसिलियुस की मौत मेरे हाथों लिख दे। अपने हाथों से जान लेनी है उसकी। उसके बाद जहन्नुम का अजाब भी मेरे लिए जन्नत से कम नहीं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीद के इसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। संभालो बेटी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को देखना 1000 तलवारों की ज़र्ब से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन मोमिन के लिए मौत की हकीकत एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने जैसा है। मजीद ये कि अगर मोमिन शहीद हो जाए तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। आलियार साहब को हम सब ने उनकी जिंदगी में देखा है। उन्होंने अदल के साथ सरदारी की, इस बात के शाहिद हैं हम लोग। अल्लाह हम सब लोगों को भी शहादत और इनकी तरह अल्लाह की राह में जान देना नसीब फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। अगर खित्ते को वतन बनाना है तो कीमत देनी होगी। इस वतन के लिए हमारे शहीदों का खून ही इसकी कीमत है। ऐ मेरे अल्लाह, शहीदों के अहल व अयाल को कभी भी उनके हक से महरूम न करना। आमीन 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 आमीन। उनके लवाहिकीन के लिए सही हक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। मैं जाने के लिए तैयार हूं। तुमने तुर्कों के दरमियान रहकर खुद को जाया कर लिया है कतरीना। मैं जो बनना चाहूं बन सकती हूं वैसिलियुस, और हर काम कर सकती हूं। अपनी सकत से कुछ ज्यादा ही कर रही हो। पहले अबू मंसूर के बारे में मालूम करो कि वो कौन है। अगर वो सुल्तान हुआ तो? अगर ऐसा हो गया तो समझो खजाना हमारे हाथ लग गया। जनाब। कहो। बहुत ही जरूरी खबर लाया हूं मैं। तो कहो फिर। हमारे सिपाहियों ने चौबदार कबीले की तरफ एक जनाजा जाते हुए देखा है, जो किसी सरदार का जनाजा लग रहा था जनाब। मैंने कहा था ना वो जिंदा नहीं बचेगा। अजाब में जलोगे तुम आलियार। ये बहुत मामूली सा दर्द है जो हमने उन्हें दिया है कतरीना, बहुत मामूली। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक उनके पीछे रोने वाले खत्म ना हो जाएं। वो ताबूत कभी खाली नहीं होगा। एक शोक खत्म होने से पहले दूसरा तैयार रहना चाहिए। तुम तो काफी गुस्से में हो। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ वैसिलियुस। जिन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है उन पर रहम नहीं करूंगी मैं। तो फिर तुम अपना काम शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा
खुशामदीद अमीर हजरत। अर्तुल साहब कहाँ हैं? अलियार साहब शहीद हो गए हैं। उनके जनाजे में चावदार कबीले गए हैं। मेरी ज़ौजा बनने का वादा किया था मुझसे, अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारने का वादा। कुछ याद आया तुम्हें? अगर अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है तो फिर एकतरीना हमारी सल्तनत की किस्मत बदल डालेगी। कौन है ये शख्स? सुल्तान अलाउद्दीन। अर्तुल साहब अब से मेरी रियासत के सरदार आला होंगे।